اسرائیل نے ایران میں حملہ کر کے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی دارالحکومت تہران میں اپنی قیام گاہ میں موجود تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس سربراہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مرکز میں میزائل حملہ رات 2 بجے کے قریب ہوا۔ اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کا محافظ بھی شہید۔ حماس سربراہ ایرانی صدر کی تقریب حلفبرداری میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ ایران کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل صبح تہران میں ادا کی جائے گی۔ حماس کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کی میت قطری دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو دوحہ کے مقامی قبرستان میں ہوگی۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ سامی ابو ظہری نے کہا بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ترجمان حماس خالد قدومی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت حماس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، فتح ہماری ہوگی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا فلسطینی متحد رہیں، صبر کریں اور ڈٹ جائیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال، فلسطینیوں نے اپنی دکانیں اور بازار بند رکھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران میں 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر کا جوابی کارروائی کرنے کا اعلان۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیادیں فراہم کر دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا دہشت گردوں کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایران اپنی سرزمین اور عزت کا دفاع کرے گا۔ کل اسماعیل ہنیہ کا فتح یاب ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اب مجھے ان کی میت اور جنازے کو کندھا دینا ہے۔ قابضین کے خلاف مزاحمت اب پہلے سے زیادہ تیز ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایران اور مزاحمتی محاذ اس جرم کا جواب دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ شہادت والد کی آرزو تھی جو پوری ہو گئی، ہماری مزاحمت ختم نہیں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے عبدالسلام ہنیہ کا والد کی شہادت پر رد عمل۔ کہا ہم اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ قیادت کے قتل سے فلسطینی مزاحمت ختم نہیں ہوگی۔ آزادی کے حصول تک حماس مزاحمت جاری رکھے گی۔ میرے والد نے ہر روز اپنے آپ کو شہید تصور کیا۔ ہمیں اپنے والد پر فخر ہے اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو کا کہنا ہے کہ آج میرے سسر شہداء میں شامل ہو گئے۔ غم بہت بڑا ہے، آنکھیں اشک بار، دل غم زدہ ہے۔ خدا ہمیں بہتر حالات عطا کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک ہنیہ خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ 10 اپریل کو ان کے 3 بیٹے اور 25 جون کو بہن کا پورا خاندان شہید ہوا۔ اسرائیلی حکومت اور فوج کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تبصرے سے انکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کا جواب نہیں دیتے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا بھی فوری رد عمل دینے سے گریز۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے امریکہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث نہیں، غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے اگر اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اپنے دوست ملک کا دفاع کرے گا۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود میں نہیں سمجھتا جنگ ناگزیر ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر دنیا بھر سے شدید رد عمل۔ چین، ترکیہ، قطر، مصر، عراق، ملیشیا، سری لنکا کی شدید مذمت۔ یمن نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ مصر نے کہا غزہ میں جنگ بندی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ عراق نے کہا ہنیہ کا قتل بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اردنی حکومت نے اپنے پیغام میں کہا اسرائیل خطے کو کشیدگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہنیہ کے قتل سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت نے اعلامیہ جاری کیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کروائی جائے۔
पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। इस्माइल हानिया के अहले खाना और फलस्तीनी अवाम से ताज़ियत का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है, चाहे वो मावराए अदालत हो या मावराए सरहद। खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। इस्माइल हानिया पर हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। हमला उस वक्त किया गया जब ईरानी सदर ने हल्फ उठाया। तकरीब हल्फबरदारी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत कई गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे को इजराइल मुखालिफ मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। सरबराह JUI का कहना है कि इस्माइल हानिया की शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ख़त्म नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस्माइल हानिया पर हमला बर्बरियत और जारहियत की शर्मनाक मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हर फ़लस्तीनी के लहू में अमरीका का हाथ शामिल है। इस्माइल हानिया की शहादत से नई तहरीक जन्म लेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान बोली, इजराइल ने सबको पैगाम दिया। पाकिस्तान भर में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हज़ारों शहरियों की शिरकत। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। रावलपिंडी, गुजरावाला, साहिवाल, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा की इमामत हाफिज इदरीस ने की। पेशावर में हयाताबाद बाग नारान में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कोयटा में जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। इस्माइल हानिया के कत्ल पर हैदराबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज़ाद उम्मीदवारों की PTI में शमूलियत खतरे में पड़ गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी के इजलास में बिल पर वोटिंग। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। बिल के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरार नामा तब्दील नहीं किया जा सकता। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशस्तों का मामला वाज़ेह है। PTI के अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जुम्मे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमारे सोशल मीडिया टीम के साथियों को उठाया जा रहा है। फायरवॉल सहाफ़ियों के लिए खतरे की घंटी है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का लबादा ओढ़ रखा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। अगर ये सब करना है तो पार्लियामेंट को बंद करके मार्शल लॉ लगा दें। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करना चाहती है। जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद लियाकत बाग रावलपिंडी में मौजूद। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रख दिए। 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा भी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। इस्माइल हानिया की शहादत पर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना मुलतवी कर दिया। जमात इस्लामी से बातचीत नतीजा खेज साबित होगी। आज भी बात हुई, किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं, आवाम को जो भी रिलीफ दिया जा सकता देंगे। अमीर मुकाम बोले, हमारी टेक्निकल कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान बातचीत हुई है। चाहते हैं जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और धरना खत्म हो। आज दफ्तर डीसील होने पर सूरत हाल का जायजा लिया है। हमारे दफ्तर से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, IG इस्लामाबाद FIA और CDA हुक्काम पर डकैती का पर्चा देंगे। दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कोई कला फतह कर लिया गया हो। रऊफ हसन के पर्स से पैसे तक निकाल लिए गए। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे, FIR इनका पीछा करेगी।
तोशा खाना के तीसरे केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। साबिक खातून अव्वल ने लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरखास्त गुजार उनके शौहर की इद्दत में निकाह केस और तोशा खाना केसेस में रिहाई हुई। तोशा खाना केस 3 में चेयरमैन नैब के वारंट के बगैर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करते वक्त खवातीन एहलकारों ने तशद्दुद किया। सियासी बुनियादों पर इंतकाम के लिए केसेस बनाकर कैद में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोज़ाना मेडिकल कराने की हिदायत। रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार किया गया। उधर गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। गुजरावाला अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की कॉल दे दी। वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI ने 5 अगस्त को जलसे की कॉल दी है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ हम सब बाहर निकलेंगे। जलसे में PTI के कारकुन भरपूर शिरकत करें। सवाबी इंटरचेंज पर सबका इंतजार करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिकन और दूध की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने का हुक्म दे दिया। अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों पर एक ही हफ्ते में दूसरा इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। कहा, कीमतों में मसनूई इजाफा काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 471 सड़कों के मंसूबों का जायजा। मरीम नवाज ने 15 सितम्बर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। रूट्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला भी कर लिया। GT रोड का कायदे आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की तामीर और तौसीह होगी। पारा चिनार की सूरत हाल पर काबू पा लिया है। पारा चिनार में अराजी के तनाज़े पर लड़ाई शुरू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हम सिक्योरिटी के हवाले से पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कुरम में हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला से दोनों ग्रुपों के सरकर्दा शख्सियात की मुलाकात। अफसोसनाक वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। सार्फिन को इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्चिंग में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान PTCL का कहना है, सबमरीन केबल में खराबी से मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। इंटरनेट सर्विस तकनीकी खराबी के बायस सुस्त रवि का शिकार है। PTCL डेटा की बंदिश की वजह से राब्ता मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 5 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 31 अफराद जख्मी भी हुए। उधर चागी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। लज़वेला के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मकामी इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 24 घर तबाह हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 1 से 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी।